Bismillahirrahmanirrahim. Today again we will discuss another very important topic related to pharmaceutical calculation और this is the volume. Last time जो हमने discuss किया है that was the length. We also discussed the area and we also discussed the weight. तो ये चीज़ें हम discuss कर चुके हैं and in today's lecture we will discuss the volume. Volume की importance it has got a very important role especially in case of volume of distribution जब हम discuss करते हैं in case of biopharmaceutics and the pharmacokinetics. So let's begin with the very first slide that basically describe कि इसका जो यूनिट है दैट इज़ द लीटर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द वॉल्यूम ये हम इसको वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं एंड द बेसिक यूनिट इज़ लीटर तो हम लीटर को वो एज ए कंसीडर कर रहे होते हैं in order to convert the different units among the volume again we should know about the prefix के जो meanings हैं we should know all these things especially starting from the tera giga mega kilo hecto deca डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पीको फेम्टो एंड एटो और फिर वी शुड नो अबाउट द सिंबल्स इसकी सिंबल का भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल ऑफ दीज प्रीफिक्स के इसकी प्रीफिक्स के सिंबल का क्या मीनिंग्स हैं इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं and the relative value in case of the exact value इनकी क्या है like in case of you can say the kilo it is 1000 and with power of 10 it is 10 raised to power 3 तो ये चीज़ें भी हमें एज ए फार्मासिस्ट पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय द प्रीफिक्स इसकी सिंबल क्या है इसकी वैल्यू क्या है एंड व्हाट इज मेंट व्हाट इज द पावर ऑफ 10 ऑफ दैट प्रीफिक्स उसकी पावर ऑफ 10 का क्या मतलब है आई मीन कि सपोज के देखा है इट मीन्स द power of 10 will be 10 raised to power 1 and the value will be 10 तो आप जब यहाँ पे कैलकुलेशन आप करते हैं या इसको कन्वर्ट करते हैं तो यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ 10 व्हेन इट इज मेंशन एज डेका और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ 10 raised to power 1 तो ये आपके लिए इजी है कि आप इनमें से किसी एक को प्लेस कर सकते हैं with the DESI, you can place the value of point 1 or you can mention the value of 10 raised to power minus 1 if you are put both they are same so that's why it is the relative value in here in this case in decimal and it is in power of 10 जब हम power of 10 में इसको वो करते हैं and remember कि जब power of 10 it is in minus sign it always come with the decimals और अगर power of 10 it is with the positive number it always come with the tens उसके multiples की form में आती है if the power of 10 is equal to 0 the answer is 1 and this is very basic thing you should know कि इसका क्या मतलब है so the first thing is you should know about the basics that are related to the volume और अगेन these are the same as already been mentioned कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये चीज़ें these are very common and as a student you should know these things. Okay, so this is basically the measure of volume. Simply as already I had mentioned that liter is the primary unit of the volume or it represents the 1/10 of the meter. 1/10 of the meter that is called as the 1 dm cube. तो 1 लीटर जो होता है सम ऑफ द थिंग यू नीड टू मेमोराइज है जिस तरह 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब यू विल नॉट फाइंड एनी वे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है बट सम ऑफ द थिंग्स यू शुड रिमेंबर लाइक डेका की मीनिंग वी नीड टू रिमेंबर कि इट मींस 10 raised to power 1 और हेक्टर की मीनिंग 10 raised to power 2 किलो मींस 10 raised to power 3 इसी तरह वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द लीटर लीटर मींस 10 raised 1 डीएम क्यूब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें फर्दर तो इन द सेम वे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप इनकी वैल्यू पुट करते हैं द 1 ml इज इक्वल टू 1 cm क्यूब उसके इक्वल होता है समटाइम we represent it as cc that means the cubic centimeter because 1 ml के syringes insulin syringes आते हैं and it is mentioned over there cc 1 cc that means cubic centimeter so that's why the
1 ml is equal to 1 cm cube और 8 is equal to cc जो हम यूज़ करते हैं. So liter is equal to 1 dm cube. Liter is almost all equal to 1 kg जो हम यूज़ करते हैं वेट की फॉर्म में, but it little bit differs. But it is the basically the volume of you can say the 1/10 of meter जिसको हम प्रेजेंट करते हैं. Okay, so starting with the example so that we have the better idea. The first one is the 11 kiloliter, next is the 103 hectoliter, then we have the 205 centiliter, then we have the 153 nanoliter, and then we have 366 microliter. तो हमारे पास different relative values हैं and how they are converted, तो हम इनको आज डिस्कस करेंगे. सो किलो मीन्स 10 रेज टू पावर 3, तो हमने यहाँ पे 11 का 11 प्लेस किया वैल्यू एंड देन 10 रेज टू पावर 3 एंड 103 की वैल्यू हमने 103 पुट की है एंड हेक्टो मीन्स 10 रेज टू पावर 2 उसकी वैल्यू हमने पुट की है. 205 again we put the same value, and for centi we place the value that is 10 raised to power minus 2. In case of 153 nanoliter we place the value, this is the same as that is given 153 and nano means 10 raised to power minus 9. So ये हमारे लिए important है क्योंकि prefix के meaning हमें आते हो. Oh, and 366 microliter. Here 366 at 10 raised to power minus 6 liter. So that is the value of microliter. ये microliter की value है. Okay. So here 10 raised to power 3 को अगर आप इस तरह में सॉल्व करते हैं 11,000 और इस तरह इसके साथ there will be 2 zeros because the 10 raised to power is 2, और इस केस में the answer will be 2.05 क्योंकि this is the minus sign में the decimal point moves from the right to the left, ये लेफ्ट की तरफ 2 टाइम्स मूव करेगा if the power is -2. तो इसकी जब पावर -2 होती है तो ये मूव करता है 2 टाइम्स एंड देन वी हैव the 10 raised to power minus 9. So point is जब कोई डिजिट एग्जैक्ट नंबर होता है लाइक 153 145 और 54 तो डेसिमल पॉइंट इज हेयर, तो इसको आप 10 टाइम्स क्या सॉरी 9 टाइम्स यू विल मूव द डेसिमल फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट. आप लेफ्ट की तरफ इसको 9 टाइम मूव करेंगे. सो द आंसर विल बी लाइक दिस वन. ये 3, I mean this is the 3, ये हो गया 3 and this is the 3. So this will be your answer. And in case of 366 microliter 10 raised to power -6 और -6 को फिर आप इसी तरह 6 टाइम जो है डेसिमल को आप मूव करते हैं फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट. सो दैट इज योर आंसर. सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है. एंड देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट. हम नेक्स्ट इसकी तरफ मूव करते हैं. So again the same values, and that is the you can say 11 liter. ये भी value same है. Then we have 103 205 153 and 360. इसमें मैंने वैल्यू यूज़ इसलिए सेम किए हैं सो दैट यू हैव बेटर कंसेप्ट, आपका इजी चीज़ों को अंडरस्टैंड आप कर सकें. So kilo means 10 raised to power again the same 10 raised to power 3, hecto means 10 raised to power 2, and centi means 10 raised to power -2, and nano means 10 raised to power -9, and micro means 10 raised to power -6. तो ये आपकी वैल्यू है. एंड दिस इज द यू कैन से द अगेन द आप इसको हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करते हैं. सपोज आप किलोलीटर को कन्वर्ट करते हैं इन द हेक्टोलीटर. तो हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हेक्टो मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर 2, तो यहाँ से हम 10 रेज़्ड टू पावर 2 यूज़ करेंगे एंड 10 रेज़्ड टू पावर 1 इट विल बी रिमेनिंग. सो आंसर विल बी 110. तो ये 110 इसलिए है कि एक जो 10 रेज़्ड टू पावर 1 है इट इज़ लेफ्ट और हेक्टो मीन 10 रेज़्ड टू पावर 2. Okay, so this is we want to convert into kiloliter. तो kiloliter की फॉर्म में we need 10 raised to power 1 हमें यहाँ पे we need it because किलो मीन 10 raised to power 3. तो हम क्या करते हैं मैथ में सिंपल एक फार्मूला है कि आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उससे आप डिवाइड भी करते हैं, या इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 10 raised to power 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power -1. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. सो 10 रेज़्ड टू पावर 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर 3 और इसकी जगह हम किलो प्लेस कर सकते हैं, और ये 10 रेज़्ड टू पावर -1 है ये इसके साथ वो होगा मल्टीप्लाई होगा एंड द आंसर विल बी 10.3 हो जाएगा क्योंकि दिस इज द माइनस साइन. तो ये इधर आ जाएगा इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा और ये 10 जाके डिवाइड हो जाएगा. तो आंसर विल बी 10.3. Okay, so then we have 205 centi means 10 raised to power -2, and again this is the milliliter है
और मिली मीन्स कि हमने इसकी पावर को 10⁻³ करना है, तो अगेन द सेम वे 10⁻10⁻1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10⁻⁻1 से हम उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 इसके साथ आ जाएगा, दिस विल बी 10⁻³ एंड वी कैन प्लेस द मिली और 10⁻1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 2050। आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इन ml, आपका ml में आंसर आ जाएगा। Okay, so 153 नैनोलीटर, नैनो की जगह we place the value 10⁻⁻9 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, माइक्रो में हमने कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए इसी को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 10⁻⁻9 को 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻3, तो दैट मीन्स 10⁻⁹ तो -6 की जगह वी कैन प्लेस द माइक्रोलीटर, हम माइक्रोलीटर प्लेस करते हैं और -3 को इसके साथ सॉल्व करते हैं, तो ये 3 टाइम जो डेसिमल है इट विल मूव फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट एंड दिस विल बी द आंसर, आपका ये आंसर आ जाएगा 366 माइक्रोलीटर। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 और हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटी में, तो सेंटी में कन्वर्ट करने के लिए सेंटी मीन्स 10⁻⁻2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻2, तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो सो दिस विल बी लाइक दिस, तो 10⁻⁻2 की जगह हम सेंटी प्लेस करेंगे और ये -4 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 366 के साथ और आप इसको जाके डिवाइड कर लें, योर आंसर विल बी 0.0366। I hope you understand these things, very simple. If you have any question you can write in the comment section एंड बेसिकली जो हमने इसको डिस्कस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द मीट्रिक सिस्टम, और वहाँ पे भी हमने इसके यूनिट्स को कैसे किया है, प्रेजेंट किया है, टेबल की फॉर्म में प्रीफिक्स की आप मीनिंग कैसे मेमोराइज करते हैं, देन सिंबल इसकी कैसे यूज़ करते हैं। सो आई होप दिस lecture, these slides will be helpful for all of you to convert from like kiloliter to hectoliter or hectoliter to kiloliter, centiliter to ml, and nanoliter to microliter, and macroliter to centiliter. So many conversions are possible simply by means of understanding the meanings of these prefix. So जब आप meanings जानते हैं, it is very easy for you to understand all these things. Okay, so moving to the last slide, and with this regarding the biopharmaceutics and the pharmacokinetics, we will conclude our pharmaceutical calculation chapter. And then for the pharmaceutical calculation as a whole, this is a very broad area, and hopefully we will try to cover all these things, especially the apothecary system, the percentage, and other methods we will try to cover in our other couple of slides. So this is basically related to pharmacokinetics, that's why the focus is little bit superficial, आप देख रहे हैं कि इतना deep हमने चीज़ को discuss नहीं किया है। Okay, so this is again the another very important parameter when you are converting the मीटर स्क्वेयर टू ml, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज होता है, एंड समटाइम्स स्टूडेंट दे बिकम कंफ्यूज व्हेन दे आर कन्वर्टिंग दीज वैल्यूज टू द ml, जब आप इसको ml में कन्वर्ट करते हैं, बट एज ऑलरेडी आई मेंशन दैट when you are converting the cube to liter, या आप cm cube to ml में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग। मैं इसको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वी विल मूव देयर। D means 10⁻⁻1 and the cube means कि ये जो पावर है it is also for the prefix के लिए भी है, but it is not placed, यहाँ पे इसको place नहीं किया गया, so 10⁻⁻1 अगर 3 पावर हो जाए तो 10⁻⁻3 आ जाएगा, so 10⁻⁻3 meter cube is equal to 10⁻⁻3, so we can write it like this way, 10⁻⁻3 meter cube, because the D means that 10⁻⁻1 लेकिन पावर 3 थी, तो इसलिए हमने 10⁻3 is equal to 1 liter. Okay, so again what we can do मैथ में, this is very simple, कि आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद 10⁻⁻3 से, और उस साइड पे भी ये 10⁻3 ऑलरेडी जो हमारे पास प्रेजेंट था 10⁻3
मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ लीटर। ओके, सो द सेम वे, यानी कि जहाँ पे हमने एडिशन की है तो इधर भी इस साइड पे भी किया। अब आप देखें, दिस इज 10⁻³ 10⁻³ दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ and this will be 10⁻³ लीटर। सो 10⁻³ मीन्स द, इसके जो मीनिंग्स हैं आप डेसिमल में देखें, -3 मीन्स मिली, सो वी कैन राइट इट एज मिली लीटर। तो ये बहुत इजी है, हम इसको मिली कर सकते हैं कि 10⁻³ मीन्स प्रीफिक्स में आप मीनिंग जाके देखें तो इट मीन्स मिली। जब हम इसको देखते हैं, दिस इज 10⁻³ एंड 10⁻³ दैट मीन्स 10⁻⁶, ये -6 है। और सेंटी की मीनिंग क्या है, सेंटी मीन्स 10⁻²। तो ये जो 3 पावर है इसके लिए भी है और ये सेंटी के लिए भी है, दोनों के लिए दिस पावर कैन बी यूज। तो 10⁻² अगर इसकी है और ये 3 ऊपर पावर है तो मीन्स 3 10⁻² की भी है, तो सो इट विल बिकम 10⁻�6। तो यहाँ पे जो सेंटी है, बिकॉज ऑफ दिस क्यूब इट रिप्रेजेंट द 10⁻⁻6 को रिप्रेजेंट करता है ये वाला, अल्दो द मीनिंग इज 10⁻², लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्यूब इट इज नाउ इक्वल टू 10⁻�6। जब ये 10⁻�6 है तो जहाँ पे 10⁻�6 होगा वी कैन प्लेस द सी, वहां पे हम सी प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज 10⁻�6, तो इसको हम सी एम क्यूब भी लिख सकते हैं। सो सी एम क्यूब इज इक्वल टू एम एल, जो मैंने आपको बताया कि 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, सो दैट मीन्स दिस वन, तो इसका मतलब ये है। सो 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, बट द मेन थिंग इज टू, जो आपके लिए सबसे वो है, जिस चीज़ को आपने मेमोराइज करना है, दैट इज dm³ को आपने मेमोराइज करना है कि 1 dm³ जो है इट इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, so this is the basic, you can say the concept about the ml and the cm cube or dm cube to the liter, ये उसका basic concept है। but one thing that you should keep in mind कि 10⁻⁻6 जो है, यहाँ पे आप जहाँ पे भी 10⁻⁻6 होगा आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं सी एम क्यूब, ये आपने माइंड में रखना है कि सी को आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, although c means 10⁻⁻2, but because of this cube it become 10⁻⁻6, उसकी जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं। so once you understand these things it is easy for you to convert the cube to the ml, आपके लिए बहुत easy हो जाता है जब आप कन्वर्ट करते हैं। so 11 nanometer cube means 11 का 11, nano means 10⁻�9, लेकिन ये पावर 3 है, 10⁻27, और फिर 11 मल्टीप्लाई विद 10⁻21, और -6 को हमने सेपरेट करना है, बिकॉज कि जहाँ पे हमने क्या प्लेस करना है, सी एम क्यूब हमने प्लेस करना है, और सी एम क्यूब इज इक्वल टू एम एल, तो ये जो होगा हमारी वैल्यू होगी दैट दिस विल बी इक्वल टू सी एम क्यूब 10⁻⁶ लीटर, 10⁻, ये देखें आप, 10⁻⁶ जो होगा दैट विल बी, यू कैन से द आपके सी एन क्यूब के बराबर हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू द, यू कैन से द, अगर हम इसको सिंपली वो कर सकें तो दैट विल बी, अगर आप उस यूनिट में ज़्यादा चाहते हैं, ओके, तो वी कैन डू दैट, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। सो हियर द एम, आप एम भी प्लेस कर सकते हैं। Okay, so sometimes people they place the value that is capital M, and sometimes it is the small m. So let's begin with the capital M. हम इसको capital M कर लेते हैं। So this is capital M, this is the capital M, this is again the capital M. Okay, this is again the capital M, and this is the that is the capital M, and this is the that is meter cube. Also we can place it like meter cube, and this will be the meter cube, and this will be equal to the meter cube. Okay, and this will be meter cube. Okay, so that will be meter cube. तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी कन्वर्टेड इट।
So let's see. दिस इज बेसिकली यू कैन से कि यहाँ पे जो कन्वर्जन है इट इज़ वेरी इजी. सो 11 का 11 हमने प्लेस किया है, नैनो मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 9 एंड इसकी पावर 3 है तो माइनस 27. 11 का 11 हमने प्लेस किया एंड देन वी प्लेस अगेन इसको हम मीटर को यानी कि इसको सम टाइम पीपल राइट इट एज ए कैपिटल और स्मॉल, ये इसको मेंशन करते हैं. इट्स अप टू यू. ओके. The 11 multiplied by 10 raised to power minus 27, ये minus 27 because नैनो की जो वैल्यू है that is 10 raised to power minus 9 है, so it will be 10 raised to power minus 27. और minus 27 को again we can इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 10 raised to power minus 21 से और 10 raised to power minus 6 से, उससे वो कर सकते हैं. और जहाँ पे minus 6 आता है we can place the सेंटी, यहाँ पे हम सेंटी प्लेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब हम प्लेस कर सकते हैं. इट इज़ ईजी फॉर अस. तो ये अगर सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी जगह सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम एम एल प्लेस कर सकते हैं बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एम एल. तो यहाँ पे हम एम एल प्लेस करेंगे. सो ऑल टुगेदर 11 का 11 हमने प्लेस किया एंड 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 और फिर हमने इसको फर्दर सेग्रीगेट किया है 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 21 एंड माइनस 26, क्योंकि ये 27 है तो इस तरह डिवाइड हो गया. So our answer will be 11 multiplied with 10 raised to power minus 21 ml, क्योंकि यहाँ पे हम ml प्लेस कर सकते हैं और इसकी जगह हम ml प्लेस कर सकते हैं, सेपरेट हमने किया है. सो ml will be there. और यहाँ पे आप देखिए 205 ये मिली है 10 raised to power minus 9, ये minus 9 है तो इट कैन बी सेग्रीगेटेड अगेन minus 3 and minus 6 की जगह हम ml प्लेस कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इक्वल टू cc. ये देखिए 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे सी एम क्यूब लिख सकते हैं, सी एम क्यूब की जगह हम एम एल लिख सकते हैं. सो दैट इज इजी फॉर अस. तो यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 है वहाँ पे हम सी सी प्लेस कर सकते, आई मीन कि एम एल प्लेस कर सकते हैं एंड दैट विल रिमेन द सेम. ये 153 और ये जिस तरह है 153 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 18, 18 इसलिए है कि मैक्रो मीन्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, लेकिन इसकी पावर 3 है सो इट विल बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 एंड देन वी डिवाइडेड इट 153 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 एंड माइनस 6. तो ये माइनस 6 की जगह हम सी एम क्यूब लिख सकते हैं एंड सी एम क्यूब इज इक्वल टू एम एल. तो ये जहाँ पे भी ये वो आएगा दैट इज सी एम क्यूब, दिस इज द सी एम क्यूब. यहाँ पे हम एम एल प्लेस करते जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज दे विल रिमेन सेम. ये देखें आप वो वैल्यू सेम, दिस वैल्यू सेम, ये वैल्यू इसको आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में और ये वैल्यू भी इट इज़ द सेम क्योंकि इट इज़ द लार्जर वैल्यू, दैट्स व्हाई I did not convert it in the decimal form. So with this, I conclude this pharmaceutical calculation related to the biopharmaceutics and the pharmacokinetics. These are very simple concept, but when the student is concerned about the pharmacokinetics की basic जो चीज़ें हैं regarding the volume of distribution, dose calculation, and sometimes you need to measure the area and length and all these things. So you should know about the pharmaceutical calculation and the metric system that is used within the globe. इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है as a basics you should know and it has got its importance in our daily life. तो हमारे डेली लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. दिस इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. द सिंपल वे to do all these calculation is to know the meanings of the prefix. जो आपके prefix के meaning है वो आपको पता होने चाहिए so that you can easily calculate these things और आपके लिए ये चीज़ें जो है helpful in your academia. Thank you very much for understanding. If you have any comment, you can always raise your question. I will try my best to reply to your concern that are related to these lectures. Thank you again.